السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسند تدریس پر جلوہ افروز تھے۔ مخلوق خدا کا ایک جمع غفیر تھا جو آپ کے مواعظ حسنہ کو سننے کے لیے دور دور سے حاضر ہوئے تھے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدن کے مسائل سن کر ان کے جواب دیا کرتے تھے۔ اس نے سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا شور سن رکھا تھا اور اسی لیے بہے آپ کی صحبت فیض سے مالا مال ہونے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا درس ختم کیا تو اس شخص کی طرف منہ کر کے پوچھا، اے شخص، تم کیوں آئے ہو؟ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کون سا ایسا کام درپیش ہے جس کی وجہ سے تم اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہو؟ وہ شخص یوں عرض گزار ہوا، یا حضرت، میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ میرے دل میں ایک تمنا ہے کہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں۔ اس دنیا میں میرا کوئی مرشد نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی کامل شخص کا مرید ہو کر دارے کی شہادت حاصل کر سکوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی عقیدت اور ارادت سے بہت متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، تم میرے قریب آؤ اور بیعت کے لیے اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ میرے چشم فیض میں تمہارا جو حصہ ہے وہ تمہیں ابھی مل جائے گا۔ اب اس شخص نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ایسی بات کہہ دی جسے سن کر حاضری مجلس بہت حیران ہو گئے۔ اجنبی شخص ہچکاتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور، میں بیعت تو ہو جاؤں گا اور آپ جو حکم دیں گے انہیں بجا بھی لاؤں گا۔ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ آپ سے سوال کرنے میں شرم اور جھجک محسوس کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا، اے اجنبی شخص، تم کیوں شرما رہے ہو؟ تم کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہے ہو؟ تم میرے سامنے کھل کر اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ تم جو چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تم اپنے دل کی پریشانی اور مشکلات کا کھل کر اظہار کرو، میرے قریب آؤ اور گھبرانے کی وجہ بتاؤ۔ تم راہ حق پر چلنے سے اس طرح کیوں گھبرا رہے ہو؟ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اسے تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ تو دے رہے، لیکن اس شخص نے آپ کی ایک نہ سنی۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بار بار سمجھایا اور دلاسا دیا تو وہ شخص کہنے لگا، میں بہت شوق سے آپ کا مرید بن جاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میری 2 شرائطیں پوری کرنی ہوں گی۔ اجنبی شخص نے عجیب و غریب متک پیش کرتے ہوئے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں، اگر آپ وہ قبول کر لیں تو میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ حاضری مجلس حیران تھے کہ ایک ایسا شخص ہے جو مرید ہونے کے لیے اپنی شرائطیں مروانا چاہتا ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدن نے ایسا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اس اجنبی کی بات پر حیران اور پریشان تھے، مگر اہل عرفان جانتے تھے کہ چند لمحوں بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی صورت میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہاری کیا شرائطیں ہیں؟ تم اپنی شرائطیں بیان کرو، اگر تمہاری شرائط جائز اور صحیح ہوں گی تو انہیں قبول کر لیا جائے گا۔ اب اجنبی شخص نے پہلی شرط بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک چور ہوں، چوری کرنا میرا پیشہ ہے اور میں چوری کر کے ہی اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں اور کئی بار کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت، میں آپ کا مرید تو ہو جاؤں گا، لیکن میں چوری نہیں چھوڑ سکتا اور میں اپنا یہ کام ہمیشہ کے لیے جاری رکھوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں بے نمازی ہوں اور نماز ادا نہیں کرتا۔ میں آپ کا مرید تو ہو جاؤں گا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا۔ میں آپ کے باقی تمام احکام ماننے کو تیار ہوں، لیکن ان 2 چیزوں کے بارے میں آپ سے کچھ رہا مانگتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان 2 کاموں میں ڈھیل دے دیں اور اس طرح میں بدصورت اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤں۔
यह सुनते ही हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह गुस्से के अंदाज में फरमाने लगे, ऐ शख्स, ये तूने कैसी अजीब व गरीब शराइतें पेश कर दी हैं। क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? क्या तू नहीं जानता कि बेनमाजी पर तो अल्लाह की भी लानत होती है। नमाज एक ऐसा अहम फरीजा है जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा और तू इसे ही अदा करने से छूट जाता है। रही बात चोरी करने की, तो यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। लोगों का माल चोरी करना एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है और इसके मुर्तकिब अफराद की यह सज़ा है कि उसके हाथ पैर काट दिए जाए। तो कैसा आदमी है कि मेरा मुरीद होने के लिए ऐसे कबीरा गुनाह कायम रखने की शर्त लगाता है। तेरे ये दोनों काम दीन इस्लाम से खारिज हैं। बेनमाजी को जब महशर के दिन लाया जाएगा तो उसकी बख्शिश नहीं होगी और वो अजाब पाएगा। मुरीद अर्ज करने लगा, हजरत, मुझे मुरीद कर लो और अपने दामन रहमत में छुपा लो। आप तो बादशाह बिलायत हैं। आपकी बारगाह में हजारों लाखों मुरीदन आए हैं और आपने सबको पार लगाया है। मैं भी एक गुनाहगार बंदा हूँ। आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरी किस्मत भी संभल जाए। वह शख्स कहने लगा, हुजूर, दूसरे मुरीदन की तरह मुझ पर भी नजरे करम फरमाइए और मेरी दिली तमन्ना भी पूरी कर दें। मुझे अपने चश्म फैद से भी हिस्सा अता फरमाएं। सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम ने उसकी सारी गुफ्तगू इंतहा तवज्जो से सुनी और फिर इरशाद फरमाया, अगर मुरीद होने के लिए तेरी यह शराइतें हैं तो बस तो पीर मुर्शिद मेरी भी कुछ शराइतें हैं जिन्हें तुम्हें कबूल करना होगा। वह शख्स इंतहा अकीदतमंदी से कहने लगा कि मुझे एक नहीं बल्कि आपकी सारी शराइतें कबूल हैं। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तो नमाज नहीं पढ़ता तो मेरी शर्त यह है कि तुझे हर नमाज के वक्त अजान देना होगी। तो अजान देने के वक्त अजान दे देना और फिर जो चाहे करते रहना। और शख्स ने सरकार बगदाद की यह शर्त मंजूर कर ली। अब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बैत करके अपने मुरीदन की सफ़ा में शामिल कर दिया। वो शख्स खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी बीवी को बताया कि वह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हो गया है और उसने अपनी तमाम शराइतें भी अपने पीरो मुर्शिद से मनवा ली हैं। अब दिन के वक्त उस शख्स का यही काम था कि जब भी नमाज का वक्त होता तो वह अजान देता। इस तरह वह पांचों वक्त की अजानें तो देता था लेकिन सजदे में सर नहीं झुकाता था। यूँ उसका दिन अजान देने में गुजरने लगा। अब दिन के वक्त उसे यह फिक्र लगी रहती थी कि कहीं अजान का वक्त गुजर ना जाए और अजान देने की वजह से पीर व मुर्शिद की नाफरमानी ना हो जाए। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि उसकी बीवी उससे झगड़ने लगी कि अब तू काम नहीं करेगा या चोरी नहीं करेगा तो घर का गुजारा कैसे होगा। तुम दिन के वक्त तो नमाज को छोड़कर अजाने पढ़ते रहते हो। आखिर खाने पीने और घर के अखराजात के बारे में भी कुछ सोचो। वह शख्स कहने लगा कि मुझे दिन को तो वक्त नहीं, अलबत्ता मैं रात को चोरी करने के लिए कहीं जाऊंगा। फिर एक रात वह इंसा की नमाज पढ़कर घर से बाहर चोरी करने की गर्ज से निकला। वह चोर सारी रात चोरी करने की गर्ज से घूमता रहा लेकिन उसे किसी भी जगह शिकार ना मिला। आखिर रात के तीसरे पहर वह चोरी करने के लिए दबे पांव एक महल के अंदर दाखिल हुआ। ढूंढते ढूंढते वो एक खुफिया कमरे में पहुंचा जहां बेशुमार दौलत थी। यह किसी बहुत बड़े रईस का घर था जहां दौलत का अंबार लगा हुआ था। उसने जल्दी से दौलत और जेबरात को अपने एक थैले में डाला। अभी वह जेबरात और माल दौलत से अपनी तिजोरी भर रहा था कि इतने में फजर की अजान का वक्त हो गया। उसने थैला वहीं रखा और अजान के लिए वुजू करने लगा। वुजू करने के बाद उसने वहीं किबला रुख खड़े होकर अजान पढ़ी। अजान की आवाज़ सुनते ही उस घर के तमाम अफराद नींद से बेदार हो गए। उसने घर वालों के डर से अजान के बाद कांपते कांपते नमाज की नीयत कर ली और फिर नमाज पढ़ डाली। इस तरह उसकी एक शर्त टूट गई। नमाज से फारिग होने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे नमाजियों की एक जमात थी और वह उनका इमाम बना हुआ था। नमाज से फारिग होने के बाद तमाम लोगों ने आकर उसके हाथों को बोसा दिया। वह शख्स इंतहा हैरान और परेशान खड़ा यह सब मंजर देख रहा था और कह रहा था कि मैं तो एक चोर हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तो अपनी थैली में तुम्हारा माल भरकर जा रहा था लेकिन आज किसी वजह से फंस गया।
उन लोगों ने चोर की एक ना सुनी और कहा कि तुम अल्लाह के बली हो और अपनी विलायत को छुपाते हो। उधर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के लिए बेदार हुए तो फरमाने लगे, अब तुम फंस गए हो, आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे। वो शख्स सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुंह करके अर्ज करने लगा, ऐ गौसे आजम, मैं आपकी शान करामत को पहचान गया, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। चुनाचे फिर उस चोर ने वहीं अपनी चोरी से तौबा कर ली और कहा कि आज के बाद मैं अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में गुजारूँगा। अब वह चोर नहीं बल्कि सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम से अल्लाह का एक बरगुजार बंदा बली बन चुका था। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की यह एक आला करामत है कि आपने एक चोर को बली के ओहदे पर फाइज कर दिया। नाजरीन, ये उस शख्स का वाक़या है जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई कामिल पीर मुर्शिद नहीं मिला था। वह शख्स 60 साल का हो चुका था, यानी वह 60 साल की उम्र तक मुर्शिद कामिल की वियाद से महरूम था। ताज्जुब की बात थी कि उसकी बीवी और बच्चे भी किसी बली कामिल के दस्ते अख्तर पर बैत हो चुके थे, लेकिन उस शख्स के साथ एक मसला यह था कि जब भी कोई दरवेश उस इलाके में आते और इस्लाम की तबलीग करते तो यह शख्स उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता। अगर कोई पीर साहिब 99% भी मुकम्मल होते, उनके अंदर ज़ाहिरी तौर पर कोई भी खामी ना होती, और अगर उनकी कोई 1% बात भी उस शख्स की समझ में ना आती तो वह कह देता कि नहीं नहीं, यह दरवेश सही नहीं है, यह शख्स मुर्शिद बनने के काबिल नहीं है, मैं ऐसे शख्स का हरगिज मुरीद नहीं हो सकता। यानी यह बात उस शख्स की आदत में शामिल थी कि वह हर इंसान के अंदर खामियां तलाश करता रहता था, किसी की खूबियों पर उसकी नज़र नहीं रहती थी। एक दिन वह शख्स अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, अब तो आप अपना कोई मुर्शिद कामिल बना लें। अगर तुम मुर्शिद कामिल के बगैर इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारा हशर अच्छा नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। उस शख्स ने अपनी बीवी को भी झाड़ दिया कि जब तुम मुझे कोई मुर्शिद कामिल नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैं वैत नहीं करूँगा। अब तक मैंने जिस दरवेश को भी देखा है उसमें कोई न कोई खामी मुझे नज़र आई है, इसीलिए मैं अभी तक मुर्शिद कामिल की तलाश में सरगर्द हूँ। बीबी ने कहा कि अगर मैं मर गई तो क़यामत के दिन अपने पीर मुर्शिद के साथ उठूँगी, लेकिन आप उस वक्त क्या करेंगे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बीबी की यह बात सुनकर उस शख्स का ज़मीर जाग उठा और उसने कहा कि यह बात तो तूने ठीक कही है, ज़िंदगी और मौत का तो हकीकत में कोई पता ही नहीं। अगर ऐसा हुआ कि मैं सुबह का सूरज ना देख सकूँ तो मेरा क्या हाल होगा। अब उस शख्स के जहन में यही ख्याल गर्दिश करने लगा। उस शख्स ने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर लगाया, फिर बिस्तर पर लेटे हुए इस ख्याल में गुम था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उस ख्याल के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं मर गया और बिना पीर मुर्शिद के ऐसे ही चला गया तो मेरा हशर क्या बनेगा। गर्ज इन्हीं सोचों में जब रात का तीसरा पहर लगा तो यह शख्स उठकर बैठ गया और उसने फिर अल्लाह ताला से वादा किया कि ए अल्लाह, अब मैं थक चुका हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दरवेश में नुक्ताचीनी करते हुए गुजार दी। मैंने कभी लोगों की खूबियों की तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि हमेशा खामियां ही तलाश करता रहा। ऐ परवरदिगार, मैं तेरे सामने तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी की खामियां तलाश नहीं करूँगा। अब मैं घर से निकलता हूँ और जिस इंसान पर मेरी नज़र पड़ेगी उसे मैं अपना मुर्शिद बना लूँगा, चाहे वह कोई भी इंसान हो और जैसा ही इंसान हो। अल्लाह ताला की बारगाह में ये अहद करके वो शख्स घर से निकला। उसने देखा कि सामने चोरों का काफिला जा रहा था। सब चोरों ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। काफिले के पीछे पीछे एक चोर चल रहा था जिस पर उस शख्स की नज़र पड़ी। चुनाचे इस शख्स को अपना वादा याद आया और उसने उस चोर को पकड़ लिया। इस शख्स ने उस चोर से कहा कि पीर मुर्शिद मुझे बैत करें। चोर हैरत और हैरानगी से उसे खड़ा देखता रहा और बड़े ताज्जुब से उस शख्स की तरफ देख रहा था जिसने उसे पीरो मुर्शिद कहकर पुकारा था। चोर उसे समझाते हुए कहने लगा कि भाई,
क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूँ तो खुद किसी का मुरीद नहीं, तो फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ? वो शख्स कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो अल्लाह ताला से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। जब मैं वादा करके आया हूँ कि जो मिलेगा वह मेरा पीर होगा, और अब तो तुम मुझे मिल गए हो तो तुम ही मेरे पीर व मुर्शिद हो। मैं तुझे मुरीद करूं? मैं तो खुद गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ हूँ। मेरे गुनाह तो इतने ज़्यादा हैं कि मैं उनका शुमार ही नहीं कर सकता। चोर ने अपना दामन छुड़ाने के लिए अपने तमाम छोटे बड़े गुनाह के सुनाए, फिर कहा कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं तुझे कैसे मुरीद कर सकता हूँ? लेकिन यह शख्स था कि अपनी जिद पर अड़ा रहा और तस से मस ना हुआ। अब इस शख्स ने चोर के पांव मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले तुम मुझे वैद करो और फिर चले जाना। आज तक मेरे सामने जितने भी मुर्शिद आए हैं मैंने उन सब की खामियां निकाली हैं और उन सब की बुराई की है, लेकिन आज मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वह सबके सब नकली थे और आप ही असली मुर्शिद कामिल हैं। अब चोर ने सोचा कि इस शख्स से जान छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चोर के दिल में एक ख्याल आया और उसने उस शख्स से कहा कि क्या तू मेरा मुरीद है? वह शख्स कहने लगा, जी हुजूर, आप मेरे पीर व मुर्शिद हैं, मैं आपका मुरीद हूँ और आपके दस्त पर बैत करना चाहता हूँ। चोर ने कहा कि तुम जानते होगे कि पीर व मुर्शिद का हुक्म मानना कितना ज़रूरी है। उस शख्स ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, मैं जानता हूँ, आप मेरी जान भी मांगोगे तो मैं हाजिर कर दूंगा। चोर ने कहा कि मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बल्कि मेरा हुक्म इतना है कि तू मुझे छोड़ दे। उस शख्स ने जिद में आकर कह दिया कि पीर व मुर्शिद, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि मैं अपनी जान दे दूंगा, पहले आप मुझे मुरीद करें। अब चोर ख्याल करने लगा कि इसे जान छुड़ाने के लिए कोई दूसरी तरकीब ही लगानी पड़ेगी। फिर चंद लम्हे सोचने के बाद चोर ने कहा कि देखो, यह हमारे सामने घर है और यही हमारा आज का निशाना है। मेरे काफिले वाले साथी तो दूर चले गए हैं, लेकिन हमारा निशाना इसी घर में चोरी करने का था। मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी नज़रों के सामने चोरी करूंगा। इसके बाद तुम यकीन कर लेना कि मैं कितना गुनाहगार आदमी हूँ। चुनाचे फिर जैसे ही दोनों शख्स उस कमरे के पास पहुँचे तो चोर के दिल में ख्याल आया कि भला कैसा आदमी है, यह तो अल्लाह की तलाश में निकला है और मुझ बदनसीब के साथ फंसना चाहता है। मैं तो अभी चोरी करके गुनाह कबीरा का इक्का करूँगा, लेकिन गुनाह देखना और उस पर चुप रहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। चोर ने उस शख्स से कहा कि तुम अंदर ना जाओ, मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा, तुम दरवाजे पर बैठकर पहरा दो, मैं अंदर से सामान चोरी करके लाऊंगा और फिर तुम्हें अपना मुरीद बना लूंगा। इसके बाद वो चोर अंदर चला गया और वो शख्स वहीं बैठ गया। जब चोर अंदर दाखिल हुआ तो पूरे मकान में अंधेरा था। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी। चोर ने अंधेरे में अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। उस कमरे में कुछ भी नहीं मिला। उसने एक कोने में हाथ मारा तो उसे एक तस्बीह मिली, दूसरी तरफ हाथ मारा तो जानमाज मिली, फिर एक लोटा मिला। उसके दिल में ख्याल आया कि साहिब मकाम तो बड़े शानदार कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं और अंदर उनका कमरा तो बिल्कुल खाली है। चोर चोरी करने के लिए सामान समेट रहा था। इसी कमरे के दूसरे कोने में हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे और यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। इसी दौरान बाहर से हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे, ऐ गौसे आजम, किसी को कर्क का कुतुब मुकर्रर करें क्योंकि वहाँ के कुतुब का विसाल हो चुका है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक चोर हमारे दर पर आया है, बड़ी देर से वह हाथ पैर मार रहा है, उसे अब तक कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि यह बगदाद की गलियों में जाकर शोर मचाए कि मैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर गया था और मुझे कुछ नहीं मिला। कहीं यह चोर मेरी सखावत के ताने ना दे। इसीलिए ऐ खिजर अलैहिस्सलाम, मैंने फैसला कर लिया है कि इस चोर को ही कुतुब अता कर दे दी जाए, इसे ही कुतुब अब्दाल बना दिया जाए। अब तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की वान का तीर चल चुका था। अब उस चोर को पीर मुर्शिद मिल चुका था और वह चोर चोर नहीं रहा था। सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर नजरे करम फरमाई। फिर जब 3 दिन ऐसे ही हुजूर
गुजर गए तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मैंने तुम्हें इसीलिए मुरीद नहीं किया कि तुम बैठकर मुझे बस देखते ही रहो। अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। करक की सरजमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैंने तुम्हें वहाँ का कुतुब मुकर्रर कर दिया है। फिर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने उस चोर को मुरीद किया और उसे खिरका खिलाफत अता फरमाया। वह शख्स इजाज़त लेकर जाने लगा तो सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए फरजंद मेरी बात सुन, तू अपने सफ़र को तो जा रहा है लेकिन इस घर के दरवाजे पर तेरा एक मुरीद तेरा इंतजार कर रहा है। पहले उस शख्स को मुरीद कर ले और फिर अपने सफ़र को चला जा। सुभान अल्लाह, यह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि की एक आला करामत थी कि आपने एक चोर को कुतुब बना दिया। नाजरीन, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।